عزیز دوستو، میں اپنے YouTube چینل لائف سٹائل وتھ سمر پر ایک نیا سلسلہ سوشل میڈیا ڈائری کے عنوان سے شروع کر رہی ہوں۔ اس میں خاص طور سے فیس بک پر لکھی یا شیئر کی جانے والی تحاریر اپنے فیس بک دوستوں کی وال سے لے کر پیش کی جائیں گی۔ اس سلسلے کا پہلا پروگرام پیش ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آغاز کریں، ایک اہم بات کرنا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فیس بک نت نئے فیچر متعارف کروا رہی ہے، جس میں آپ اپنی فیس بک کی کلاسک نئے طریقہ کار میں بدل سکتے ہیں، مگر اکثریت کو یہ فیچر پسند نہیں آیا۔ اگر آپ اسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ کوئی سا پیج بنا لیں، اب اس پیج پر جائیں اور اس کے کارنر پر آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ فیس بک کلاسک میں واپس جانا چاہتے ہیں تو اس بٹن کو کلک کریں، سوئچ ناؤ کو دبائیں۔ اس کے سامنے ایک آپشن آ جائے گی، آپ نے یس کا بٹن دبانا ہے اور اس کے بعد وہ وجہ پوچھے گا۔ کسی ایک آپشن کو منتخب کر لیں اور کچھ دیر انتظار کریں۔ آپ کی فیس بک واپس کلاسک فیس بک میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس فیس بک پر اپلوڈ کی جانے والی YouTube ویڈیوز اور میری سوشل ایشو پر لکھی تحریر بھی مل جائیں گی۔ اب آتے ہیں فیس بک کی دیگر تحاریر کی طرف۔ اسلم ملک صاحب ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں اور فیس بک پر کافی مقبول ہیں۔ یہ مشہور صحافی اور بہترین لکھنے والے ہیں۔ ماضی اور حال سے متعلق ان کی تحاریر انتہائی معلوماتی ہوتی ہیں جو وہ اکثر شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اسلم ملک صاحب لکھتے ہیں، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ آج اس ضرب المثل شاعر کے خالق شعیب بن عزیز کی سالگرہ ہے۔ یہ کون سی سالگرہ ہے یا کتنے سال کے ہو گئے یہ میں نہیں بتا سکتا کہ فیس بک پروفائل پر بھی انہوں نے بیشتر خواتین کی طرح یوم پیدائش صرف 21 اکتوبر لکھی ہے، سن کوئی درج نہیں۔ اگر حکمرانوں کو شعر یاد کرانے کی مشکل ڈیوٹی نہ ہوتی تو اس شاندار شاعر کے اب تک 2-3 مجموعے ضرور آ چکے ہوتے۔ پیشہ ورانہ قابلیت کے باعث پرویز الہی نے انہیں مفید پایا تو شہباز شریف سے بھی ناگزیر۔ یہی وجہ ہے کہ شعیب بن عزیز اپنے محکمے کے سب سے زیادہ گریڈ ترقی پانے والے افسر ہیں۔ شعیب بن عزیز کے کچھ اشعار۔ بینر پہ لکھے حرف خوشامد پر جو خوش ہے، دیوار پر لکھی ہوئی تحریر بھی دیکھے۔ پختہ گھروں کو چھوڑ کر کشتی میں آ گئے، دریا کا خوف لوگوں کو دریا میں لے گیا۔ دوستی کا دعویٰ کیا، عاشقی سے کیا مطلب، میں تیرے فقیروں میں، میں تیرے غلاموں میں۔ ہم نیند کے شوقین زیادہ نہیں لیکن کچھ خواب نہ دیکھیں تو گزارا نہیں ہوتا۔ شہر میں جو بھی تنہا ہوگا اس کا چہرہ مجھ سا ہوگا، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میرا دوست مجھ جیسا نہیں ہے۔ میرے لاہور پر بھی ایک نظر کر، تیرا مکہ رہے آباد مولا۔ دل آباد کا برباد بھی ہونا ضروری ہے، جسے پانا ضروری ہے اسے کھونا ضروری ہے۔ انڈیا سے محمد علم اللہ صاحب لکھتے ہیں، پہاڑ کی ایک رات کے پچھلے پہر چونک کر آنکھ کھلی ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے کمرے میں پہاڑ کی سردی سے شرما کر میرا جسم رضائی سے لپٹا ہوا ہے۔ کھڑکی سے دور دور تک رات کی ویرانی نظر آ رہی ہے۔ رات تو ہر جگہ ہی ڈرانی ہوتی ہے، مگر پہاڑ پر اندھیرے میں عجیب بھوکا سما ہے۔ میرے دل میں نہ جانے کیسی بے گلی ہے۔ بچپن میں کبھی کبھار ایسی ہی چونک کر رات کے کسی پہر آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ میں زور سے پکارتا، امی۔ امی کا جواب عجیب ہوتا، سو جا، کچھ نہیں ہے، میں یہیں پر ہوں۔ اس جواب میں نہ جانے کیسی توانائی تھی کہ میں پھر سے مزے کی نیند سو جاتا۔ پھر بڑا ہوا تو در بدری مقدر بنی، کبھی بھٹکل، کبھی اعظم گڑھ، کبھی حیدرآباد تو کبھی دہلی میں اور جامعہ کا ہاسٹل۔ اب رات کو چونک کر نہیں اٹھا کرتا تھا، اٹھا بھی تو برابر کی چارپائی پر ماں تھوڑی سو رہی ہے جو بس بولے گی اور میرا ہر خوف رفع ہو جائے گا۔ لیکن آج اتنی مدت بعد
वैसी ही आँख खुली है। सोचा था वबा की वजह से बंद रहकर तबीयत में जो कसलमंदी आ गई थी वो शिमला की फिजाओं और हिमाचल के नज़ारों में उमंगों से भर जाएगी, लेकिन ये क्या कि यहाँ आकर तो बचपन की एक दहशत ने सर उठा लिया। मैंने लिहाफ परे फेंका और बदन में कंबल लपेटकर कमरे से निकलकर मकान की लॉबी में चलने लगा। सामने जीना नजर आया तो उसी पर उतरने लगा और चंद सीढ़ियों बाद में आंगन पर था। दूर तक वैसा ही हू का आलम, अंधेरा और सर्दी, बराबर में ही जंगल की खामोशी, रात की तारीकी और साएं साएं करती हवाओं ने इसके सकूत को भी आवाज दे दी है। मैं छत के ठंडे फर्श पर ही बैठ गया। अब मैं सन्नाटे और जंगल की सरसराती हवाओं से हम कलाम था। कितनी ही देर राज़ो नियाज होते रहे। सामने पहाड़ की चोटी से सूरज सर उठा चुका था। मैं जल्दी से उठा और ऊपर अपने कमरे की तरफ भागा। मेरा दोस्त यकीनन मुझे ढूंढ रहा होगा। असलम मलिक साहब लिखते हैं, नए सोशल मीडिया कवानीन जारी। गलत मालूमात शेयर करने, किसी तरह के हुकूमत मुखालिफ मवाद, किसी भी शख्सियत की नकल उतारने, हर तरह के फहश और नाजेबा मवाद, मजहबी मनाफरत, तौहीन मजहब और तौहीन रसालत से मुतल्लिक हर किस्म के मवाद, पाकिस्तान के सकाफती और इखलाकी इक़्तिदार के खिलाफ हर तरह के तशद्दुद, दहशतगर्दी पर मबनी मवाद पर किसी भी तरह की दहशतगर्दी को बराह रास्त नहीं दिखाया जाएगा और साथ ही किसी तरह के फहश मवाद को भी बराह रास्त नशर नहीं किया जा सकेगा। लेकिन ये वजाहत नहीं की गई कि पुरतशद्दुद, फहश, गैर अखलाकी पाकिस्तान हुकूमत मुखालिफ जबकि पाकिस्तानी इक़्तिदार के खिलाफ मवाद को कैसे जांचा जाएगा। कानून नाफिज होने के 3 माह के अंदर फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, गूगल और दीगर कंपनियां अपने नुमाइंदे पाकिस्तान में तैनात करेंगी। 9 माह के अंदर वो मुकामी दफातर खोलने की पाबंद होंगी। सोशल मीडिया कंपनीज को हदायत की गई है कि वो कानून नाफिज होने के 18 माह के अंदर डाटा सर्वर मुकामी तौर पर तश्कील दें और सार्फिन को आसान ज़बान में सोशल मीडिया के ज़वाबित भी समझाएं। इन क़वाइदो ज़वाबित के तहत अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तहरीरी या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से गैर कानूनी मवाद की निशानदेही की जाएगी तो वो उसे 24 घंटे जबकि हंगामी सूरत में 6 घंटे में हटाने की पाबंद होंगी। 100 से ज़ायद तंजीमों, इंसानी हकूक से मुतालिक काम करने वाले अदारों और शख्सियात की जानिब से तनकीद के बाद वफाकी हुकूमत ने सिटीजन प्रोटेक्शन गेस्ट ऑनलाइन हार्म रूल्स 2020 में तरामीम करके नए ज़वाबित जारी किए हैं। तरीक़ेकार की निगरानी और हिफाजत 2020 का नाम दिया गया है। 2016 एक्ट के सेशन 37 के तहत मंजूर करके नाफिज किया गया है। सोशल मीडिया पर आपको पंजाबी रंग भी नजर आएगा। इस सिलसिले में नसीम गुलफाम नाज साहिब की एक गजल पेश है। जेड़े हथ पतवार नहीं लगदे ओ किधरे भी पार नहीं लगदे, थोड़ी होर पया नैना नू हाले 2 दे 4 नहीं लगदे, ऐ नहीं ठीक निशाने वजे ऐ दुश्मन दे वार नहीं लगदे। जावेद मिर्जा साहब फेसबुक की एक जानी मानी शख्सियत हैं। इनके ज़ूमा से जद्दा फ्लाइट 3 बजे थी। 3 बजते ही कतर एयरवेज में अपनी सीट पर बैठा तो मेरे साथ एक गोरी लड़की जो बरतानिया से थी बैठ गई। आते ही उसने अपनी तहजीब के मुताबिक हाथ बढ़ाते हुए कहा हाय। मैंने भी हाय कहकर वापस अपनी किताब पढ़ने में मसरूफ हो गया। उसने कुछ वक्त के बाद पूछा आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हूँ। उसने बताया कि वो अपने खावन के पास जद्दा जा रही है जो वहाँ मुलाजिम है। मैंने ज्यादा बात करना मुनासिब न समझा और किताब पढ़ने लगा। एयर होस्टेस मुसाफिरों को खाना पेश करने लगी। मैं अमूमन फ्लाइट के उनके खाने नहीं खाता। उनके खाने अक्सर जर्मन और पेरिस से बनकर आते हैं। मालूम नहीं क्या पकाया होता है और किस तरह से पकाते हैं। मैं इस एहतियात के पेश नजर हमेशा फ्लाइट में अपने टिफिन के साथ खाना निकाल कर रखता हूँ। इस लड़की ने अपने सामने मेज खोला और उसमें खाना लगवा लिया। चूँकि वो मेरे साथ ही सीट पर थी इसलिए मुझे उसके हरकत का इल्म हो जाता है कि वो क्या कर रही है। उसने अपने बच्ची को गोद में लटाया और चम्मच में चावल लेकर अपने मुंह में डाले। छोटी सी मासूम बिल्कुल सब्ज आंखों वाली बच्ची ने मासूम सी प्यारी आवाज में कहा मम्मा, यानी गोया एहतजाज हो रहा था कि अम्मी मुझे भी दें। जब बच्ची ने खा लिए तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा से थैंक यू, यानी कि आपका शुक्रिया। वो बच्ची माँ को कहती मॉम थैंक यू। माँ ने फिर खाना शुरू किया। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि बच्ची ने फिर खाने का कहा से थैंक यू। यूँ माँ बच्ची को एक एक चम्मच देती रही और हर चम्मच पर कहलवाती रही से थैंक यू। सारे खेल को मैं देखता रहा।
इतने में कुछ चावल माँ के कपड़ों पर गिरे तो बच्ची ने माँ के लिबास की तरफ, जो बस नाम का ही था, इशारा किया। मॉम, माँ ने टिश्यू पेपर से बराए नाम कपड़ों को साफ किया, क्योंकि कतर में गर्मी पड़ती है और वो एक आजाद मुल्क है। माँ कपड़े साफ करने के बाद बच्ची को प्यार से थैंक यू माई चाइल्ड। माँ ने पूरे 36 बार अपनी बेटी से थैंक यू कहलवाया। अब आप लोग बताएं कि शुक्रिया अदा करने की आदत इस बच्ची की घुट्टी में पड़ जाएगी कि नहीं। हमें से किसने अपने बच्चों की परवरिश इस अंदाज से की है। यूरोप के दुनिया के राज को मैं इस मामूली वाक़ये से जान गया कि हम क्यों गुलाम और वो क्यों आका बन गए। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो मखलूक का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। है कोई माँ जो आज हमारे माशरे में अपनी औलाद की इस तरह तरबियत करे। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानियाँ क्यों ना दे, छोटे के मुंह से कभी शुक्रिया का लफ्ज नहीं निकलेगा। रुबीना शाहीन साहिबा फेसबुक के हलकों में काफी मकबूल हैं। आप एक बाशऊर और पढ़ी लिखी खातून हैं। आपके फॉलोअर्स की तादाद भी काफी ज्यादा है। यूँ तो सर्दी है जान लेवा मगर सर्द मेहरी हजूर कातिल है। आपकी तहरीर सोच के नए दर वा करती है। सैयद रजा शाह जिलानी साहेब भी बहुत अच्छे लिखने वाले हैं। तंज़ो-मिज़ाह में इनका एक अपना अलग मकाम है। इनके लिखी गई तहरीर में तंज़ो-मिज़ाह की चाशनी नजर आती है। अपनी एक पोस्ट में जॉन एलिया साहब की एक बहुत खूबसूरत बात शेयर करते हैं। जबान बंदी जबानों को बड़े गज़बनाक लहजे से खाती है। सैयद रजा शाह जिलानी पेशे के एतबार से वकील हैं। इसके अलावा ये अक्सर मानीखेज स्टेटस भी लिखते हैं। कहते हैं बच्चे मासूम होते हैं। एक मासूम बच्चे की इस मुतासिर कुन वीडियो में आप देखें कि एक बच्चा किस तरह परिंदों को खाना खिला रहा है और परिंदे मोहब्बत की जबान समझते हुए इसके इर्द गिर्द जमा हैं। शोएब मलिक साहिब भी फेसबुक पर काफी एक्टिव हैं। इनकी बहुत सी तहरीर सोच के नए दर वा करती हैं। इसी तरह की एक तहरीर में लिखते हैं, जिस मुल्क के हर किलोमीटर पर लाइब्रेरी और तजर्बा गाहों की बजाय दरबार और दरगाहें हों, वहाँ साइंसदान नहीं बल्कि मजावर और मलंग पैदा होंगे। इकबाल खुर्शीद साहिब अदब की दुनिया में एक बहुत आला मकाम रखते हैं। इनके अक्सर तहरीर तंज़ो-मिज़ाह से भरपूर होती हैं। अपनी इस तहरीर में लिखते हैं, जनाब वज़ीर आज़म इस पूरे मामले में जिसे कराची वाक़या कहा जा रहा है बुरी तरह गैर मुतल्लका हो चुके हैं। अलबत्ता बेहतर यही है आने वाले दिनों में वो लंगर खानों के दौरे जारी रखें और महंगाई से मुतल्लिक बयानात देते रहें। आखिर नुमाइशी ओहदे के भी कुछ तकाजे तो होते हैं। रिजवाना सैयद अली साहिबा अफसाना निगार कालिम निगार हैं। इनकी खूबसूरत तहरीर सोच के नए से नए दरवा करती हैं। माजी और हाल को लेकर ये बहुत ही मुफीद और काबिल अमल तहरीर पेश करती हैं। जैसा कि वो अपनी इस तहरीर में यादें ताज़ा करते हुए लिखती हैं, पुरानी अनारकली लाहौर की एक वस्ती गली में ऊंचाई शेख कलंदर बख्श वाक़े है। ये दरअसल शेख कलंदर बख्श साहिब की हवेली थी, जिसे 1850 में तामीर किया गया और बरादरी के बेशुमार खानदान यहाँ आबाद थे। कलंदर बख्श साहिब मेरी अम्मी के परदादा थे। हवेली में एक मस्जिद भी थी, जिसका एक दरवाजा अंदर और दूसरा बाहर सड़क पर खुलता था। शेख कलंदर बख्श साहिब लाहौर के मुतमव्विल ताजिर थे, जो 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गए और आज़ाबाद जब अंग्रेज ने उसे गदर का नाम देकर हजारों लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया तो उसमें शेख कलंदर बख्श भी शामिल थे। खुदा रहमत कुनन ई आश का पाक दीनतरा। बाद में इनके बड़े बेटे इनकी बेशतर जायदाद बेच बाच कर खा गए, जो लाहौर में जगह जगह फैली थी। 60 के दहाई में जब मेरे छोटे मामू ज़हूरुद्दीन शेख सीए करने बरतानिया गए तो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में मौजूद रिकॉर्ड में शेख कलंदर साहिब का जिक्र मौजूद था। कूचे की मस्जिद का सड़क वाला दरवाजा बंद करके वहाँ एक साहिब ने दुकान खोल ली थी, जिसे मेरे नाना जान शेख मोहम्मद शफी साहिब ने बाकायदा मुकदमा लड़कर आवाम के लिए खुलवाया। आज इस कूचे की मखदूश हालत, शिकस्तगी, बोसीदगी देखकर मैं हैरान हूँ कि रहने वाले यहाँ रह कैसे रहे हैं। अहले लाहौर को तो इस मायानाज सपूत की यादगार को महफूज कर लेना चाहिए था, पर यहाँ तो चप्पे चप्पे पर फैली ऐसी बेशुमार
شمار یادگاریں اپنی بے بسی اور بے حسی پر ماتم کنا ہیں۔ دلی کے نہ کوچے تھے اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ میر کا یہ شعر لاہور پہ بھی چسپاں ہوتا ہے۔ اقبال حسن صاحب انڈیا کے جانے مانے افسانہ نگار ہیں۔ آپ ایک رسالہ نکالتے ہیں جس کا نام ثالث ہے، جس میں مختلف افسانہ نگاروں کے افسانے شامل کیے جاتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، باصلاحیت لوگوں کو پروموٹ کرنا میری ذمہ داری ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، کسی بھی مذہب یا مسلک سے وابستہ ہوں۔